Hello student, this is Priya Gudyal. I am a biology teacher, NEET qualified too. Here, through this medium, I will teach you biology of class 12. In 12th standard, there are 16 chapters. Reproduction in Organisms is the fourth chapter. About biology question paper. Question paper की जो timing होती है, it is 3 hours, maximum marks 70, and there are 5 units. So we're talking about the syllabus of class 12. So there are 5 units. Unit number 6, 7, 8, 9 and 10. यूनिट नंबर 1 to 5 हम 11th स्टैंडर्ड में कंप्लीट कर चुके हैं एंड हेयर इन द 12th स्टैंडर्ड वी आर गोइंग टू learn about the units number 6 to 10. Unit number 6, reproduction. It is of 14 marks, this unit, reproduction, and unit number 6 is of 14 marks. There are 4 chapters in this unit. Like chapter number 1 name is reproduction in organisms. Chapter number 2, sexual reproduction in plant. Third, human reproduction, and the fourth is principle of inheritance and variation. Today we are going to start with the chapter number 1, reproduction in organism. First of all, we will start with the general instruction of biology. This is the quote like I have written here. Winner don't do different things, they do things differently. That means winner means जो toppers है ना, वो क्या डिफरेंट चीज़ें करते हैं, क्या वो अलग चीज़ें करते हैं? नहीं, वो सेम चीज़ें करते हैं गाइस, वो सेम चीज़ें करते हैं, वो सेम बुक्स पढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, बट उनका जो तरीका होता है, दे डू थिंग्स डिफरेंटली. दैट मीन्स उनका जो तरीका होता है, जो वे होता है, वो डिफरेंट होता है. तो हमें भी स्मार्टली वर्क करना है और अच्छे से पढ़ना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, टॉपिक्स को देखना है और प्रैक्टिस करना है, रिविजन करना, सो दैट वी कैन अचीव आवर target. And our target is, cracking the board examination with the highest percentage ever we got. So we will start this session with a short description about biology. We will take reproduction in organisms. Like today we are going to learn about this chapter. The second topic that we are going to deal with, it is types of reproduction and asexual reproduction. So first of all, let's start with the biology key term. Okay. So the first point is that biology is the discipline. Biology is the discipline which deals with the study of living forms of life, or biology is the science of life. That means biology, biology is the discipline. It is a discipline which deals with the study of living forms. Living form means that like those forms which have life. Life किसके पास होती है? लाइफ केवल एनिमल्स और प्लांट्स के पास होती है. एनिमल्स आपको पता होगा, एनिमल्स के ही अंदर ह्यूमन बींग्स भी आते हैं. सो प्लांट्स और एनिमल्स, लाइक ये जो दो कैटेगरी है, इनके पास लाइफ होती है. ठीक है, तो अगर हम लिविंग फॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसी को हम बायोलॉजी कहते हैं. बायोलॉजी is the science of life. Like in chemistry we deals with the chemicals, in physics we deals with the machines, but if we are talking about the life, if we are studying about the science of life, it is biology. This is the branch of science that deals with the study of living organisms. Now the term biology has its origin from two Greek words. Like biology is not a single word. ये एक single word नहीं है. It is a combination of two word. Biology word combination है दो words का. इसमें अगर आप इसको separate करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें two words हैं, bio and logy. Like bio that bios, and it means life, and logos means study. That means study of life is termed as biology, or study, because we have said that it is a word which is here in biology there are two words. So these are two words, bios and logos, and it means a study of life. If you are talking about and learning about the life forms. Come on the next point. As the Greek naturalist Aristotle made the first measure on biological studies, so he is rightly known as father of biology. देखिए,
एरिस्टोटल वो साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में इसकी खोज की, इसके बारे में पढ़ा, जाना, ठीक है। बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए हैं, इसीलिए एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नीट के एंट्रेंस एग्जाम्स में भी ये कई बार पूछा जाता है, हु वॉज द फादर ऑफ बायोलॉजी और हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी, सो इट इज़ एरिस्टोटल, ठीक है। The term biology was first used in 1802 by Jean-Baptiste de Lamarck in France. देखिए, biology is the study of science और biology is the study of life, we know about it. But the first this term used by he was Jean-Baptiste. Jean-Baptiste de Lamarck थे जिन्होंने सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड का टर्म दिया था। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो नीट एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए लिखी हैं ताकि आप आराम से इनको पढ़ सकें, जान सकें कुछ बेसिक साइंटिस्ट के बारे में। नॉट बेसिक बट वो बहुत ग्रेट कंट्रीब्यूशन रहा है इन साइंटिस्ट का, तो आप इनके बारे में जान सकें। देयर आर टू मेजर्स फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की टू फॉर्म्स होती हैं और उन टू फॉर्म्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो दीज आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये फ्लावर है, ये प्लांट्स के लिए यहाँ पर फ्लावर है, बट इट इज़ अ फ्लावर लाइक ये एक फ्लावर है। और ये फ्लावर जो है इसमें एक स्पेशल चीज़ है कि ये सबसे बड़ा फ्लावर है, और सबसे बड़ा फ्लावर तो रेफ्लेशिया इज़ द लार्जेस्ट फ्लावर। रेफ्लेशिया का जो फ्लावर होता है वो लार्जेस्ट फ्लावर होता है और ये रेफ्लेशिया है। दिस इज़ द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इट। नाउ दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ एनिमल लाइक इट इज़ एलिफेंट, और ये एक ऐसा मैमल है जो कि 3 माइल्स पहले ही पता कर लेता है कि पानी की प्रेजेंस के बारे में इसको पता चल जाता है। एलिफेंट्स ऐसे एनिमल्स होते हैं जो बिना पानी के सर्वाइव नहीं कर सकते, मतलब अगर इनको 3-4 डेज़ के अंदर अंदर पानी अगर अवेलेबल नहीं हुआ तो ये इनकी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हैज़ार्डस होता है। सो एलिफेंट एक ऐसा मैमल होता है जिसको वाटर, मैंने आपको बताया था कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। वैसे वाटर तो सबके लिए लाइफ होता है, बट अगर इनको पानी नहीं मिले तो ये 3 या 4 डेज से ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर पाते। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट। देयर आर 2 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की 2 ब्रांचेस होते हैं। देखिए, बायोलॉजी के अंदर हम एनिमल्स और प्लांट्स की स्टडी करते हैं, हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं, एनिमल की स्टडी करते हैं। इसी की बेसिस में बायोलॉजी की 2 ब्रांचेस हैं। एक को हम कहते हैं जूलॉजी और एक को कहते हैं हम बॉटनी। ये आपको 11th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। सो जूलॉजी एक ऐसी ब्रांच है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो जूलॉजी दैट मीन्स ग्रीक वर्ड जून। जून का मतलब होता है एनिमल एंड लोगस का मतलब होता है स्टडी। इसका मतलब कि अगर अगर हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं तो बायोलॉजी एक सेपरेट ब्रांच होती है, उसके अंदर करते हैं और उस ब्रांच का नाम है जूलॉजी। जूलॉजी बायोलॉजी की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम एनिमल्स, केवल एनिमल्स के बारे में डील करते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं। Now come to the next point, botany. Botany ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है herbs. That means एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम केवल herbs या plants के बारे में डील करते हैं, उस बायोलॉजी की उस ब्रांच को हम कहते हैं botany. So botany is the branch of science or branch of biology in which we deals with the study of plants or study of plants is also known as botany. चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। फादर ऑफ बॉटनी इज नोन एज थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने मोर देन 500 प्लांट्स के बारे में अपनी बुक के अंदर लिखा, इसकी वजह से इस ग्रेट कंट्रीब्यूशन को देखते हुए इनको टाइटल मिला फादर ऑफ बॉटनी। इस थियोफ्रेस्टस के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये है कि थियोफ्रेस्टस एरिस्टोटल के ही स्टूडेंट थे। एरिस्टोटल जिनको फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है, उन्हीं के स्टूडेंट थे थियोफ्रेस्टस से। अपने टीचर से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने अपने इनका इंटरेस्ट था प्लांट्स में, उसके ऊपर इन्होंने डिस्कवरी करी। मोर देन 500 प्लांट्स के बारे में इन्होंने उसकी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस, उनके बाद क्लासिफिकेशन, सारी चीज़ें एक बुक के अंदर लिखी। इसी वजह से इनको फादर ऑफ बॉटनी बोला जाता है। नाउ कम्स टू अवर चैप्टर। हमारे जनरल इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो गए हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर and it is reproduction in organism. First of all we are going to start with the reproduction. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया
कि रिप्रोडक्शन जो है ये आपके रिप्रोडक्शन यूनिट के अंदर 4 चैप्टर्स हैं और 4 चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म आपका फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो उसके बारे में यहाँ पर हम बेसिक चीज़ों के बारे में डील करेंगे। पहला पॉइंट, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन एक ऐसा मेथड है जिसमें नए ऑर्गेनिज्म न्यू ऑफस्प्रिंग की फॉर्मेशन होती है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स से आप हुए, तो द प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग जो कि हम हैं, ठीक है, हम क्या है, न्यू ऑफस्प्रिंग है और हमारा प्रोडक्शन किन से हुआ है, हमारे पेरेंट्स से हुआ है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। मतलब कि एक ओल्ड जनरेशन से एक नई जनरेशन का फॉर्मेशन होना, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग वन इज नोन एज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन बिकम्स वाइटल प्रोसेस विदाउट विच स्पीसीज कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग। देखिए, रिप्रोडक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसमें क्या होता है, देखिए अगर रिप्रोडक्शन होना बंद हो जाए, देखिए हम यहाँ पर केवल 100 पीपल्स हैं, ठीक है, 100 पर्सन हैं, और अगर ये रिप्रोड्यूस होना बंद कर दें तो क्या होगा, एक टाइम आएगा 100 के 100 डाई हो जाएंगे, 100 के 100 डाई हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, ज़ीरो। मतलब कोई भी क्या यहाँ पे स्पीसीज़ जो होमो सैपियंस की जो स्पीसीज़ है, वो पॉपुलेशन है, वो ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब अर्थ पे से जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो डिसअपियर हो जाएगी। सो स्पीसीज़ कांट सर्वाइव फॉर लॉन्ग, स्पीसीज़ बहुत लॉन्ग सर्वाइव नहीं कर सकते अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, it ensures the continuity of species generation after generation as older individual undergoes senescence and ultimately die। इसमें क्या होता है, एक ये कंटिन्यूटी को, स्पीसीज़ की जो कंटिन्यूटी है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसको मेंटेन करके रखता है। पहले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स रिप्रोड्यूस हुए, हमारे पेरेंट्स हुए, फिर पेरेंट्स रिप्रोड्यूस हुए, फिर हम हुए। तो इस तरीके से एक जनरेशन से ये दूसरे जनरेशन को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, फिर दूसरी जनरेशन से ये तीसरी जनरेशन को कनेक्ट करेगा, फिर थर्ड जनरेशन से ये फोर्थ जनरेशन को करेगा कनेक्ट। तो क्या हो रहा है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या हो रहा है, ये कॉन्टीन्यूटी को मेंटेन करके रखना है। तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या करके रखता है, कॉन्टीन्यूटी ऑफ स्पीसीज़ को लाइव रखता है। एंड इसमें जो अब जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे, जो पहली जनरेशन थी वो सीनेसेंस में चली जाएगी, ओल्ड एज में चली जाएगी और अल्टीमेटली डाई हो जाएगी। फिर सेकंड जो हमारी स्टेज है, फिर वो सीनेसेंस में आएगी और हम पेरेंट्स बनेंगे एंड फिर अल्टीमेटली तो ये प्रोसेस चलता रहता है। सो दैट मेंटेन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ। नाउ नेक्स्ट टर्म, लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, बर्थ, और यहाँ पे क्या है, डेथ। तो बर्थ और डेथ मतलब नेचुरल डेथ वी आर टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे हम नेचुरल डेथ की बात कर रहे हैं, या एक्सीडेंट या कुछ इस तरीके से अगर डेथ होती है तो उसको नेचुरल डेथ नहीं बोला जाता है। नेचुरल जो एक्सीडेंट होते हैं उनको नेचुरल डेथ नहीं बोला जाता है। तो यहाँ पर नेचुरल डेथ की बात हुई है, ये जो इंसान की एक प्रॉपर एज होती है जिसमें हमारे सर्वाइव एक प्रॉपर एज जहाँ पे उसकी डेथ होती है, सो नेचुरल कारणों की वजह से होती है, तो वो हो गई। सो द टाइम पीरियड बिटवीन द बर्थ एंड द बिफोर द डेथ, मतलब जो टाइम पीरियड होता है बर्थ लेने के बाद से और डेथ से पहले तक का जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड को इंसान जीता है और उसी को लाइफ स्पैन बोला जाता है। समझ में आ रहा है आपको, ये टर्म क्लियर हुई आपकी। लाइफ स्पैन का मतलब क्या हुआ, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन एक टाइम पीरियड होता है जो बर्थ के बाद और डेथ से पहले का जो टाइम पीरियड होता है उसको कहा जाता है। लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म वेरी फ्रॉम फ्यू डेज टू द थाउजेंड ऑफ ईयर। देखिए लाइफ स्पैन जो है, यहाँ पे आपको पता है डाइवर्सिटी है, डिफरेंट काइंड्स के एनिमल है, डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स हैं। तो सिंपल प्लांट्स भी हैं, कॉम्प्लेक्स प्लांट भी हैं, सिंपल एनिमल्स भी हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स भी है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनकी जो लाइफ स्पैन है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी है तो क्या यहाँ पर लाइफ में भी कोई चेंज है, तो येस, मतलब एनिमल्स टू एनिमल वेरी करता है। अगर एनिमल टू एनिमल वेरी करने का मतलब ये है
कि यहाँ पे ये एनिमल है, ठीक है, यहाँ पे प्लांट है, एनिमल है, सिंपल एनिमल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं, सिंपल प्लांट होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्लांट होते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो वेरी करता है फ्यू डेज से, मतलब इनकी कॉम्प्लेक्सिटी और सिंपलर स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर से इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो भी वेरी करता है। जैसे डाइवर्सिटी प्रेजेंट है ना, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे अर्थ पे डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से लेके कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक यहाँ पर है। एक सिंपल प्लांट से स्टार्ट करते हुए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बिग बैनियन ट्री भी है, जैसे कि यहाँ पे पिक्चर मैंने आपको दिखाई दिया बैनियन ट्री, ठीक है। और ये है बटरफ्लाई। तो सिंपल ऑर्गेनिज से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज, सिंपल प्लांट से कॉम्प्लेक्स प्लांट, डिफरेंट काइंड्स की डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पर प्रेजेंट है, नेचर में प्रेजेंट है। तो इसी तरीके से इनका लाइफ स्पैन भी वेरी करता है, यू नो। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं बटरफ्लाई, तो बटरफ्लाई का जो लाइफ स्पैन होता है वो 1 to 2 वीक होता है, ये सिर्फ 1 से 2 वीक तक ही सर्वाइव कर पाती है। जबकि अगर एक बैनियन ट्री की लाइफ स्पैन की बात करते हैं हम, तो मोर देन 2000 ईयर्स या फिर 2000 ईयर्स तक सर्वाइव कर सकता है। लेकिन प्लांट और एनिमल में एक डिफरेंस ये होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो हमेशा ग्रो करते रहते हैं, जबकि एनिमल्स की जो ग्रोथ रेट है वो एक टाइम पर, एक पर्टिकुलर एज पर आकर रुक जाती है। और प्लांट के पास बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सेल्स भी होते हैं जिनसे वो मेंटेन करके रखता है अपने लाइफ की जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस होते हैं उनको मेंटेन करके रखता है। बैनियन ट्री यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बैनियन ट्री की, तो बैनियन ट्री का जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ये मोर देन 2 ईयर्स होता है, 2000 ईयर्स सॉरी। एंड बटरफ्लाई की हम बात करते हैं तो बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन 1 to 2 वीक्स तक का होता है। इसी तरीके से और एनिमल्स के एग्जाम्पल्स भी हैं जिनका लाइफ स्पैन वेरी करता है। लेकिन हमारा लाइफ स्पैन क्या है, ये क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन हियर, question time. So it is the question is that like you know what is the lifespan of a human being, ठीक है। तो आप सोचेंगे इसका आंसर क्या हो सकता है, लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन बीइंग क्या कितना होता है, ठीक है ना, कितना ईयर्स हम सर्वाइव कर पाते हैं। चलिए तो आते हैं टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। हमें पता है रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों रिप्रोडक्शन ज़रूरी है, ताकि लाइफ की कंटिन्यूटी बनी रहे, अर्थ पर लाइफ हमेशा रहे, मतलब ये अर्थ है और इस पर लाइफ हमेशा रहे, 1 जनरेशन 2 जनरेशन, ठीक है, 3 जनरेशन 4 जनरेशन, मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या हो, ये लाइफ कंटिन्यू रहे अर्थ पर। तो उसके लिए ज़रूरी है कि रिप्रोडक्शन हो। तो इसीलिए हमें पता है कि रिप्रोडक्शन की कितनी इम्पोर्टेंस है। रिप्रोडक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल बट टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ ऑल्सो। ओके, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कहने का मतलब है कि रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। तो देयर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। द फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द सेकंड वन इज दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डील विद द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। When the offspring is produced by the involvement or participation of single parent, only the reproduction is known as asexual reproduction. देखिए, ए का मतलब होता है एब्सेंट। बायोलॉजी में ए का मतलब कहीं पे भी अगर ए वर्ड आ जाए तो उसका मतलब क्या होता है, एब्सेंट। मतलब सेक्सुअल जो सेक्सुअलिटी है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एब्सेंट है, एब्सेंट है, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए, जब भी अगर नया ऑर्गेनिज्म और न्यू ऑफस्प्रिंग बन रहा है बट वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, पार्टिसिपेशन हो रहा है केवल सिंगल पेरेंट से, ठीक है ना, अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है केवल सिंगल पेरेंट से, तो इस टाइप के रिप्रोडक्शन को बोला जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है न्यू ऑफस्प्रिंग का, लेकिन वहाँ पर केवल पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट केवल सिंगल पेरेंट है, सिंगल पेरेंट के ही थ्रू क्या हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, केवल एक ही पेरेंट क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट कर रहा है, तो उस टाइप के रिप्रोडक्शन को कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि जो रिप्रोडक्शन में गैमेट्स टेक पार्ट करता है। गैमेट्स मीन्स स्पेशल टाइप के सेल्स बॉडी में फॉर्म्ड होते हैं, मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी। ये टाइम पीरियड जो गैमेट्स बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं जिसमें स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं। मेल के अंदर बनते हैं स्पर्म, जबकि फीमेल के अंदर बनते हैं ओवम, ठीक है। तो मेल के अंदर बनते हैं स्पेशल टाइप के सेल्स स्पर्म और फीमेल के अंदर बनते हैं ओवम। तो फ्यूजन ये क्या है, ये गैमेट्स हैं, दीज आर द स्पेशल सेल। और ये सेल्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। हमारी बॉडी में
सारे सेल डिप्लॉयड कंडीशन में होते हैं, मतलब हमारी बॉडी के अंदर सारे जितने भी सेल हैं वो उसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। बट ये जो स्पेशल टाइप के सेल बनते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेटोजेनेसिस, गैमेटोजेनेसिस मतलब इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दीज स्पेशल सेल। ह्यूमन की बॉडी के अंदर या एनिमल्स की बॉडी के अंदर ये स्पेशल टाइप के सेल्स बनते हैं, और ये दो अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। फीमेल में बनता है ओवम और जबकि मेल में बनता है स्पर्म। So formation of these two different kinds of cell, ये जो फॉर्मेशन हो रहा है इनका स्पेशल टाइप के सेल हैं, देन इसी को हम गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। और गैमेटोजेनेसिस के बाद ये दोनों सेल्स का फ्यूज़न होता है। तो ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें ये स्पेशल टाइप के सेल बॉडी के अंदर नहीं बनते हों, ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इट इज़ यूजली फॉलोड बाय ऑर्गेनिज्म विद सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जिनकी बॉडी एक या दो सेल से मिलकर बनती है, उनकी बॉडी एक या दो सेल से मिलकर बनती है, उन्हीं को हम कहते हैं सिंपलर, या फिर केवल सेल से मिलकर बनती है तो उनको हम कहते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिनकी बॉडी केवल सेल से मिलकर बनती है, ठीक है। तो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कैसी होती है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है। कैसी ऑर्गेनाइजेशन होती है इनकी बॉडी की, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। तो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो ऐसे ही ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिंपल होती है, जिनकी बॉडी में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, वो ही इस टाइप के रिप्रोडक्शन को करते हैं, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। The produced offspring are not only identical but are also morphologically similar to each other and to the parent. It means they are cloned. देखिए जैसे कि एक सेल है, मतलब हमने बात करी है कि ये एक अमीबा है और अमीबा क्या करता है, एसेक्सुअल प्रोडक्शन करता है। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, आपको पता होगा। अमीबा क्या करता है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, केवल इसकी बॉडी एक सेल से मिलकर बनती है, ठीक है। और ये क्या करता है, एक एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन करता है। इसकी बॉडी स्प्लिट होती है और स्प्लिट होकर ये दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना। क्या करता है, दो डॉटर सेल की फॉर्मेशन करता है। सो इसी टाइप, क्योंकि इसकी बॉडी सिंपलर है, सिंपलर मतलब इसकी बॉडी किससे बनी हुई है, केवल एक सेल से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, एक सेल से मिलकर बनी हुई है, सिंपल बॉडी है इसकी। तो जब इसकी सिंपल बॉडी है तो इसने एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन किया, क्योंकि इसमें केवल एक ही सेल, मतलब केवल यही पेरेंट बॉडी है और यही टेक पार्ट कर रही है किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यही टेक पार्ट कर रही है। सो दैट इज, इस केस में ऐसा होता है कि जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट से, मतलब जैसा पेरेंट सेल होगा वैसा ही डॉटर सेल्स बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे यहाँ पर कोई वेरिएशन तो है नहीं, कोई अलग वेरिएशन तो नहीं हुआ, क्योंकि एक ही बॉडी से क्या बना है, पेरेंट बॉडी बनी है, मतलब एक ही बॉडी है और उस बॉडी से क्या बने हैं, डॉटर सेल बने हैं। तो ये आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल कहने का मतलब है सिमिलर, आइडेंटिकल कहने का मतलब है कि ये सिमिलर होते हैं, बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होता है, इनमें कोई भी डिफरेंसनेस नहीं होती, बिल्कुल डिफरेंट नहीं होता है, ये बिल्कुल आइडेंटिकल होता है, पेरेंट्स की तरह होता है, जैसे पेरेंट्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी इसमें सेम होते हैं, ठीक है। तो अब आगे आते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिकल होते हैं मॉर्फोलॉजिकली, मतलब एक्सटर्नली बाहर से अगर हम इनको देखेंगे तो ये बिल्कुल अपने पेरेंट्स के तरह होता है। मॉर्फोलॉजिकली मतलब आपने 11th में पढ़ा होगा, मॉर्फोलॉजिकल मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मतलब ऐसे कैरेक्टर जिनको बाहर से देख पता लगाया जा सकता है। तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स को आइडेंटिकल कैरेक्टर्स बोलते हैं, जो बिल्कुल अपने पेरेंट्स जैसे कैरेक्टर अगर हमारे अंदर आते हैं वो आइडेंटिकल। और मॉर्फोलॉजिकली हम आइडेंटिकल लगते हैं। मॉर्फोलॉजिकली मतलब कि बाहर से जो हम दिखने पर बिल्कुल पेरेंट्स की तरह लगते हैं, जैसे पेरेंट्स सेल होते हैं बिल्कुल ऐसे ही लगते हैं। तो क्योंकि हम पेरेंट्स की तरह लगते हैं इसीलिए हमें, मतलब क्योंकि नॉट हम, मतलब जो सेल अमीबा के अंदर जो डॉटर सेल्स बन रहे हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, इसीलिए उनको क्लोन वर्ड बोला जाता है। क्लोन वर्ड मतलब जिनका जीन भी सेम है, मतलब क्रोमोसोम नंबर यहीं से ही आ रहे हैं, तो सेम क्रोमोसोम, जेनेटिकली भी ये सेम होते हैं और मॉर्फोलॉजिकली भी ये सेम होते हैं। इसलिए हम उनको क्लोन्स बोलते हैं। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स को क्लोन कहा जाता है।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। इन सम ऑर्गेनिज्म मोड ऑफ डिविजन इज ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ रिप्रोडक्शन, एग्जाम्पल प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। देखिए क्या होता है कि एक अमीबा के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये जब अपने डॉटर सेल्स को बनाता है तो इसके डॉटर सेल्स बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है, बिल्कुल इसके जैसे। अमीबा जब डिवीज़न करता है, जब अपनी बॉडी को डिवाइड करता है, जब अमीबा को डिवाइड होता है तो दैट मीन्स मोड ऑफ डिवीज़न। मोड ऑफ डिवीज़न मतलब अपनी बॉडी को डिवाइड कर रहा है, तो मोड ऑफ डिवीज़न ही इसका रोल ऑफ मोड ऑफ डिवीज़न ही इसका रोल ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब मोड ऑफ डिवीज़न ही इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। समझ में आ रहा है आपको? मतलब ये बॉडी को, अच्छा अमीबा डिवाइड क्यों होता है? देखिए अमीबा के अंदर क्या होता है कि साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, जिसको साइटोप्लाज्मिक या न्यूक्लियस रेशियो कहते हैं, वो इक्वल होना चाहिए। जब भी ये रेशियो बढ़ता है तो बॉडी को क्या होना होता है, डिवाइड होना होता है, ठीक है। तो जब ये बॉडी डिवाइड होती है तो अमीबा के 2 डॉटर सेल्स बन जाते हैं, तो इसी को तो हम रिप्रोडक्शन कहते हैं, मतलब फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कह रहे हैं। और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल इसीलिए है क्योंकि एक ही पेरेंट से, मैंने अभी आपको बताया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिंगल पेरेंट टेक पार्ट लेते हैं। इसमें गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, क्योंकि गैमेट फ्यूज़ ही नहीं होते, बनते ही नहीं है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो फ्यूज़ भी नहीं होंगे, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। तो एक ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट की फॉर्मेशन नहीं होती है, फ्यूजन ऑफ गैमेट नहीं होता है, केवल एक ही पेरेंट रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, मतलब एक ही पेरेंट प्रोड्यूस करता है ऑफस्प्रिंग्स को, उसी को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। उस सिंपल ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो डिवीज़न है, मोड ऑफ डिवीज़न है, वो ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी होता है। चलिए तो अभी नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो यहाँ पे मैंने कुछ एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो हम इसको पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे कुछ स्पेशल है ऑर्गेनिज्म के नाम दिए हैं, जैसे कि इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि अलग अलग एनिमल्स का जो मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब है कि जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बना है, क्या वो एक सेल से बना है, क्या वो केवल सेल से मिलकर बने हुए हैं, क्या वो उनमें ऑर्गन भी है, क्या ऑर्गन सिस्टम भी है। जैसे हम ह्यूमन की बात करते हैं तो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है ना। तो ये सारे सिस्टम्स हैं। तो हमारी बॉडी की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी केवल सिंगल सेल से बनी होती है। तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें जनरली जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो किसके थ्रू होता है, बाइनरी फिजन के। बाइनरी फिजन के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या होता है। इसके एग्जाम्पल है अमीबा और पैरामीशिया। बात करते हैं एल्गी में, फंगस में और मल्टीसेलुलर जो लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। उनमें क्या होता है, स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं, जैसे जूस्पोर। जूस्पोर किस में बनते हैं, जूस्पोर बनते हैं क्लेमाइडोमोनास में। कॉनिडिया की फॉर्मेशन होती है वो पेनिसिलियम में होती है। बर्ड्स की फॉर्मेशन होती है ये हाइड्रा में होती है। जेम्यूल की फॉर्मेशन होती है ये स्पंजेस में होते हैं। मतलब ये स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं। स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर जूस्पोर जो होते हैं वो मोटाइल स्पोर होते हैं, मतलब उनके पास इस तरीके से फ्लैजिला लगा हुआ होता है और इन फ्लैजिला की हेल्प से वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। तो जूस्पोर मोटाइल स्पोर्स होते हैं जो क्लेमाइडोमोनास में बनते हैं। कॉनिडिया मतलब कॉनिडिया एक स्पेरिकल बॉडीज होती हैं, इस तरीके स्पेरिकल बॉडी होती है और ये एक के ऊपर एक इस तरीके से लगी हुई रहती है, ठीक है। तो जब ये एक बनती है उसके बाद ये दोबारा से एक आउटग्रोथ बनाती है इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर एक आउटग्रोथ बनाती है, ठीक है। तो ये सर्कुलर बॉडीज कॉनिडिया है। फिर एक टाइम आएगा यहाँ से डाइसेस हो जाएगी, नीचे गिरेगी, तो जहीं पे भी ये डिस्पर्स होंगी वहीं पे दोबारा से ये इस तरीके से कॉनिडिया की फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देती है। बर्ड्स तो आपको हाइड्रा में पता ही होगा, जम्यूल फॉर्मेशन कुछ इस तरह के जम्यूल फॉर्मेशन होती हैं,
जो कि नए ज़िम्नोस्पॉन्जेस को बनाने में हेल्प करती है। आ जाते थे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एग्जाम्पल है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव जो पार्ट्स होते हैं उनसे रिप्रोडक्शन होता है। चलिए, तो आज हम यहीं तक ही कवर करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आज हमारा इतना था, तो रैप्स के लिए थोड़ा सा देख लेते कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है। तो देखते हैं, हमने स्टार्ट किया था जनरल की टर्म से। हमने पढ़ा था कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। फिर उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पढ़े, जैसे कि हमें पता चला फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, एंड बायोलॉजी सिंगल वर्ड नहीं होता है, दो ग्रीक वर्ड आपस में कंबाइन होते हैं और इसका मीनिंग होता है स्टडी ऑफ लाइफ। फिर हमने लार्जेस्ट फ्लावर और एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैमल्स के डिस्कस की। उसके बाद हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट किया फाइनली, जिसमें हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और लाइफ स्पैन क्या होता है। देन फिर हमने एसेक्सुअल को डिस्क्राइब किया, थोड़े इसके एग्जाम्पल्स पढ़े। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल स्टार्ट करते हैं क्लास।